Okay, the students, as we have discussed in previous class regarding respiration, in respiration, cellular respiration. So, as we have discussed, the for the releasing of energy, breakdown of glucose molecules within the cell. That's why it is known as the cellular respiration. So today we will talk about the we have discussed about this is are of two types, anaerobic respiration and aerobic respiration. Today we will discuss for the anaerobic respiration. The partial oxidation of food in the absence of oxygen, resulting in the release of some amount or little amount of energy, is called anaerobic respirations. Anaerobic means without oxygen or in the absence of oxygen, while aerobic means with oxygen or with presence of or in presence of oxygen. So that is aerobic. So बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज मॉलिक्यूल का पार्शियल ऑक्सीडेशन यानी कंप्लीट नहीं होता, पार्शियल होगा और इस प्रक्रिया में बहुत कम मात्रा में जो एनर्जी रिलीज होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन. ग्लूकोज, as we have discussed, glucose, the molecular formula of glucose is 6,6H12O6. That is the glucose formula. So glucose has 6 carbon atoms joined to each other by the covalent bonds. Hydrogen and oxygen atoms are also attached to these carbon atoms. In anaerobic respiration of glucose, some hydrogen atoms are removed from it, resulting in the oxidation. As you have to remember, either the addition of oxygen or the removal of hydrogen is known as a oxidation. So here hydrogen atoms are removed from it. That's why the splitting of it. At the end of the series of these reactions, glucose gets converted into two molecules that is called pyruvate, which contains 3 carbon atoms. These reactions also produce 2 molecules of ATP. क्या कि ग्लूकोज जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स वाले एटम्स हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से आपस में जुड़े हुए होते हैं. तो इस एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में ग्लूकोज का क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम्स रिमूव यहाँ से टूट जाते हैं, विखंडित होते हैं और दो स्प्लिटिंग के बाद कन्वर्ट होते हैं 2 मॉलिक्यूल्स, जिसको ये अलग अलग 2-3 कार्बन एटम वाले जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं इसको हम लोग पायरुवेट बोलते हैं. ये पायरुवेट जो हैं ये 3 कार्बन एटम्स वाले मॉलिक्यूल्स हैं. तो ये these reactions also produce, यानी इस प्रक्रिया में ATP जो है केवल 2 मॉलिक्यूल्स ATP का रिलीज होता है. The oxidation of glucose in a series of reacting leading to the formation of pyruvate is called glycolysis. ये जो प्रक्रिया है अभी तक की इसको ग्लाइकोलाइसिस भी बोलते हैं. यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल के विखंडन के पश्चात जो ये 3 कार्बन एटम वाले मॉलिक्यूल्स हैं इसको ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं. सो नाउ ग्लाइकोलाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स का टूटना, विखंडन. इट टेक्स प्लेस इन ऑल ऑर्गेनिज्म इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स. इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन बोथ either aerobic or anaerobic. After glycolysis, its product pyruvate gets converted into different compounds depending on whether further reactions takes place in the presence
और द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ग्लूकोज के स्प्लिटिंग के पश्चात, टूटने विखंडन के पश्चात सभी ऑर्गेनिज्म में ये यहाँ तक का जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है, ये सेल के अंदर कहाँ, साइटोप्लाज्म तक होता है। और इस फर्स्ट स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन, ये पहला जो स्प्लिटिंग हुआ इसको पहला स्टेज बोलते हैं रेस्पिरेशन का। बोथ दोनों कंडीशन में, आइदर एरोबिक होगा तब भी और एनारोबिक होगा तो भी, ये स्प्लिटिंग फर्स्ट स्टेज तक दोनों कंडीशन में होगा। और ग्लाइकोलाइसिस के बाद इसके जो प्रोडक्ट हैं जिसको कि हम लोग पायरुवेट कहते हैं, ये कन्वर्ट होता है डिफरेंट कंपाउंड्स, अलग अलग। फिर इसका अगर स्प्लिटिंग होगा वो डिपेंड करता है कि इसका स्प्लिटिंग किस कंडीशन में होगा और क्या बनेगा। तो क्यों डिपेंड करता है, आइदर अगर प्रेजेंस रहेगा ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी रहेगी तो फिर अलग मॉलिक्यूल्स में, और अगर नहीं रहेगी तो अलग अलग। इसके लिए हम लोग लेट अस कंसीडर ग्लाइकोलाइसिस इज द लास्ट एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेज in case oxygen is absent or in low supply and in cells that lack mitochondria. After glycolysis, further anaerobic reactions produce different products like lactic acids, ethanol or ethyl alcohol in different situations. This step completes the anaerobic respiration of glucose. Anaerobic respiration resulting in the formation of these products is also called fermentation. Examples of these lactic acid formation and alcohol fermentation are as we have to discuss here, कि जैसे कि इस ग्लूकोज के ग्लाइकोलाइसिस जो कि साइटोप्लाज्म में होता है और इस विखंडन के बाद ये पायरुवेट में टूट गया, दो पायरुवेट बन गया। अब इस पायरुवेट के बाद अगर हम लोग अलग अलग सिचुएशन पर यहाँ बात करते हैं कि अगर ये ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल है, ऑक्सीजन अनुपस्थित है, तो ईस्ट में ये जो है क्या करेगा, इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल का फर्मेंटेशन की प्रक्रिया, यहाँ इसको इसी प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। इसमें इथाइल अल्कोहल का फर्मेंटेशन करके फॉर्मेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रिलीज होता है। तो ये एक स्टेप हो गया, इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन भी हम लोग बोलते हैं। दूसरा होता है क्या कि अगर जहाँ की नहीं रहेगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन, एक केस हुआ। दूसरा कि अगर नहीं रहे तो क्या होता है, इन दैट केस in low supply of oxygen, yeast converts pyruvate into ethanol and carbon dioxide. Certain bacteria which lacks mitochondria that convert pyruvate to lactic acid. When our muscles are overcrowded, blood is unable to supply oxygen fast enough for producing energy through an aerobic means. In this low oxygen conditions, pyruvate gets converted into lactic acid. Accumulation of excess lactic acid is in the resultant of muscle spasm or muscle pain. तो दूसरा कंडीशन क्या हो गया, फिर से पहले भी परिस्थिति में ऑक्सीजन की कमी थी या कम मात्रा में अवेलेबल थे या नहीं थे। तो दूसरा कंडीशन, अगर मान लो कि ह्यूमन मनुष्य के शरीर के अंदर अगर ओवर हम कोई भी काम अगर कर रहे हैं और वहाँ पर एनर्जी की आवश्यकता पड़ रही, मान लो हम दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, कोई हैवी वर्क कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और उस साइड पर मसल्स को ऑक्सीजन की आवश्यकता है और हमारे ब्लड फ्लो से कंटिन्यूअस सप्लाई करके ऑक्सीजन वहाँ पर उस रेशियो में, उस तत्परता से वहाँ अगर साइट पर नहीं पहुँचता है तो यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो उस केस में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। दैट इज द सेकंड कंडीशन। तो लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन के कारण these lactic acids are going to accumulate at the
साइट ऑफ वर्क, तो वहाँ पर इस लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन और एक्युमुलेशन से वहाँ पर क्रैम्प, मसल क्रैम्प होगा, जिसको हम लोग मसल क्रैम्प बोलते हैं और पेन बोलते हैं। जैसा कि मान लो कि हमें ऑक्सीजन, हम बैठे हुए हैं तो इस कंडीशन में हमें उतनी एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, हमारे पैर को हम हिला पा रहे हैं हल्के से, ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा साइट पर पहुंच जा रहा है, हम चल फिर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर अचानक मान लो कि किसी कारण से हमें भागना पड़ जाए, दौड़ना पड़ जाए, तो दौड़ते हैं और हमारे पैरों के मसल्स तक जो ब्लड सप्लाई से ऑक्सीजन की मात्रा वहाँ तक पहुँचती है, उस रेशियो में, कंटिन्यूएशन में अगर इमीडिएट साइट तक नहीं पहुँच पाता है उतनी जल्दी, तो उस स्टेज में, उस कंडीशन में वहाँ पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा और उसके कारण मसल स्पाज्म होगा। तीसरा कंडीशन कि जहाँ प्रेजेंस होगा, यानी ऑक्सीजन अगर उपस्थित रहेंगे, तो फिर स्पाइरुवेट का तीसरा कंडीशन, यानी अब होगा जब हाँ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस एनर्जी, ये तीनों यहाँ पर उस ब्रेक डाउन के बाद यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में फर्दर टूटेगा, यहाँ पर जल का भी निर्माण होता है और एनर्जी भी यहाँ पर रिलीज होकर के निकलते हैं। सो अब हम लोग अगला स्टेप जो है ये एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में चर्चा करेंगे, जहाँ ऑक्सीजन उपस्थित रहेगा, उस कंडीशन के लिए फर्दर आगे बढ़ेंगे हम लोग।